अभी हमारा नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा लीला प्रसंग। ठाकुर जी ने क्या क्या लीला किए थे, उनका जो स्थूल स्थूल शरीर में जो थे क्या क्या लीला किए थे उसके बारे में पढ़ रहे बंगात 1327 साल कार्तिक मास समय अपराह्न स्थान आसाम बंगीय सारस्वतम श्री श्री ठाकुर ब्रह्मचर्य साधन पुस्तक पाठ करी ब्रह्मचर्य साधन उद्देश्य संसार माया ममता त्याग करी मठन्तेवासी हेबा पाई सुदूर प्रांतरू आसीଥାଏ। मठर गुरु गंभीर भाव स्निग्ध परिवेश प्राकृतिक सौंदर्य मनमुग्ध କରିଥାଏ। ऋषिମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଚୀନ ତପୋବନ ଯେପରି ପୂର୍ବ ବାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫେରି ଆସିଅଛି। ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଆସନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସମାପ୍ତ। ମଠ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୁ ବାହାରି ଜୈନିକ ଗୌରିକ ଧାଡ଼ି ସୌମ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ଓ ଧୂପଦାନୀ ହାତରେ ନେଇ ଶିବବାଟି ଅଭିମୁଖରେ ପୂଜା ନିବେଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ଏକାକୀ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ କେଶ କଳପ ଶୁଷ୍କ ଗୁମ୍ଫା ବିମଣ୍ଡିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଦ୍ଧମିଳିତ ଭାବ ଧଳ ଧଳ ନୟନ ଯୁଗଳ ମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କର ନିଃସୃତ ହେଉଥାଏ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅମର ଗୀତିକା ଶଙ୍କର ତୁମାର ରାଗିଣୀ ଜୀବନ କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ବାଜେ ଜେନେ ସଦା ବାଜିବ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏ କିଏ? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣି କହେ ଏ କୁମାର ଚିଦାନନ୍ଦ। କୁମାର ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଅଛି। ସେ ଏହି ଭୂମିକାର ଲେଖକ ଏବଂ ଏହି ଭୂମିକା ଭିତରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ପତ୍ରରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ମାୟା କୃପା ଓ ସାଧୁକାଷ୍ଟକ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ନାମ ଶୁଣିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଜାତ ହେଉଥିଲା। ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆଜି ଯାହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାର ଧାରକ ଓ ବାହକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଭାବ ଗଙ୍ଗାର ଭାଗୀରଥୀ ହିଁ ସେ। ଏହି ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଅପାର ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ପରକ୍ଷରେ ଦେଖିଲି ସେହି ଅନ୍ତଲୀଳ ଭାବ ତନ୍ମୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୂଜାରୀଙ୍କର ବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ ବେଶରେ ହାତରେ କୋଦାଳ ନେଇ ପୋଖରୀ ପଟେ ଥିବା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ହେଲେ ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଡ଼ତା ନାହିଁ। ମନର ଆବେଗରେ ଦୁର୍ବଳର ବେଗରେ ଜୟଗୁରୁ କହି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ମାଟି କାଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପରମାତ୍ମ ମଧ୍ୟାହ୍ନିକ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବେ ହିଁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି କରିବେ। ବଳ ରକ୍ଷା ହେଲା। 4 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାକୀ ଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ କର୍ମବୀର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗ୍ରହଣାନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲି ସେ ସାନ୍ଥ ସାହେବ ବହିଟି ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ପୂଜାରୀ ନୁହନ୍ତି, କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ଜୈନିକ ଶିଷ୍ୟ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଖିଲି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଆସନ ମୁଦ୍ରାଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଗୀରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାତି ଅନ୍ତେ ତମାକୁ ସଜାଇ ଆଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ତାଙ୍କର ପଦ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାର୍ଷଦ ସେବକ ରୂପରେ। ଏହି ଭାବରେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜକ, ଭାବୁକ, କର୍ମୀ, ଯୋଗୀ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ଗୁରୁସେବକ ରୂପରେ ଦେଖିଅଛି। ସେଦିନ ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଅନ୍ତରେ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଦିକ ରୂପରେ, ଗୁରୁଭକ୍ତ ରୂପରେ, କର୍ମୀ ରୂପରେ, ଅଗ୍ରଜ ରୂପରେ ସ୍ନେହର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଧାରାରେ ଅଭିନିର୍ଜିତ କରି ଅଜସ୍ର ଉପଦେଶର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ରହିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କୌଣସି ଦିନ ବିସ୍ମୃତ ହେବି ନାହିଁ।
से ए जगतर लोक होई मध्य जेपरि एही जगतरे नथिले ए जगत रही मध्य आदर्श कर्म मध्य आम समिश्रित करी भी सर्वदा से अंतर भावतन्मय होई ओढ़ी रहुथिले से थिले चिर उदासी मुक्तिर परिपोषक रूपे श्री ठाकुर घनिष्ठ भक्त सेवक श्री बिहारी मोहन शर्मा को प्रणीत श्री ठाकुर महात्मा नामक ग्रंथरु स्वामी चिदानंद महाराज संपर्क लिखित अंश विशेष उद्धृत करी पाठक वर्ग को उपहार प्रदान करुअछि। प्रकाश थाउ कि उक्त ग्रंथ श्रीक्षेत्र प्रकट अवस्था 1327 तिथिरे प्रकाशित होइथिबा एवं श्रीक्षेत्र एहार उत्साहित प्रशंसा करथिले। एहार सत्यता संबंध संध्यार कौनसी अवकाश नहीं। उक्त ग्रंथर तृतीय परिच्छेद ग्रंथकार लिखिछन्ति आउ थरे मठर दुर्गा उत्सव समय ललिता कियारी ललिता नेउथिबा देखि चिदानंद महाराज धमक दे कहिले नाटक मंदिर रे जाई फूलमाल गुंथ जेउ दिन जेउ कार्य मु कहिली पूर्व कीर्तन नर्तन भली एबे मु सब कार्य आनंद पाई सुतरां एही ललिता गुड़िक काहीकि पचि जीव से कहले आम मान कर्म पाई आमे माने पचि जीव तो जाऊ जहाँ संगे दिने पोखरी पटे जंगल परिष्कार करने को जाई बिरुड़ी वर्षा देखी भले आम पाश्चात्पद चाहिए जे कहले आम बिरुड़ी हटाइबा बिरुड़ी आमको हटाइब एवं असंख्य बिरुड़ी दर्शन साह करी जंगलटा दा द्वारा जंगल संपूर्ण भाव में परिष्कार कर छाड़िले जे एका 3 जनक बोझ मुंडरे बही नहीं मु देह नुहे कही निर्दिष्ट स्थान को चली जाऊे कर्म समापन देखिले ही से लंब प्रदान करने जहाँ स्वभाव मुखर आज मूल्यवान ललिता गछ गुड़िक पचि जाऊ कथा शुणी क्षणकाल अबाक हो रही जोग कर्मेशु कौशल गीतारू मुखस्थ करी वास्तव क्षेत्र में ताहा अर्थ बुझीगली और कर्मयोग कर्मबंधन पाखे उपलब्धि कली जो कर्म आम मान पाखे बंधन ताही से पाखे बंधन मुक्त उपाय स्वरूप योग प्रबल कौशल द्वारा बंधन ही मुक्ति परिगणित करा जाए। ललिता नेबाकू जाई आम दृष्टि रहिब झोटर मूल्य प्रति आउ सेमानक दृष्टि रहिब सेवा संस्कृतर आनंद प्रति एणु यही ललिता संग्रह करने कर्मटे कहार बंधन हेब कहीं बा मुक्तिर आस्वादन भोग करेंगे पूजा अर्चना जाग जोग मध्य बंधन हो पारे पुणी हल चालर काठ आहार कर्म कर मुक्ति हो पारे। वर्तमान आईन कानून दोष कि प्रतिकूल पारिपार्श्विक अवस्था जो समस्ते जानती जे मिथ्या छड़ा मोकदमा हो पार ना किंतु मोकदमा बा जे कौन कर्म जदि जोग कर आनुष्ठानिक हुए कर्तार जदि कर्तृत्व अभिमान और फलाकांक्षा लेस मात्र न थाए तेरे किछि जे असंभव नुहे यह मठर भाई मान पाखु प्रत्येक भाव में शिखी पारी। चिदानंद महाराज सहित मोकदमा संक्रांत परामर्श निमित्त जोरहाट अक्षय बाबू वकील बसा को गली प्रथम से मत संग नापी प्रस्ताव कले से मत प्रस्तावटी किपरि अड़ुआ अड़ुआ लगिगला अनिच्छा हेले आदेश पालन कर मोकदमा कथा पढ़े मोकदमा लोक छाड़ा चाहती से कथा नहीं दिन राति कटाई जेपरी तृप्तिबोध करती नहीं आम किंतु प्रथम मौनी हो यात्रा करूँ अनिच्छा सत्वे अप्रीतिकारक विषय अनुधावन जो मौनी होता है मोकदमार चिंतार अक्रांतिक चिंता हो से मौनी होती मु भाविली किसी दूर जावाक देखिली जे केवल विवेकानंद कर्मयोग गुरु नानक सुखमणि साहेब आदि आलोचना आरंभ करदेले आ मझीरे विराम न नहीं एका बेलक 7 माइल दूर थी अक्षय बाबू बसारे जाई उपस्थित है ठीक निर्दिष्ट कथबार्ता सारी लालमोहन भाई बसारे
ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ମଠକୁ ଫେରିଲୁ। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ ହସ, କାନ୍ଦ, ନାଚ, ଗୀତ କେତେ ଯେ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅପ୍ରୀତିକର ଭାବିଥିଲି ଏବେ ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ହାୟ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଉଭେ ଏକାଠି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଦୁଇଟି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପସଂହାର କରୁଅଛି। 1322 ସାଲ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯୋଡ଼ପାକଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ବସି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ କେହି କିଛି ପାଇଥାଏ ତେବେ ଚିଦାନନ୍ଦ। ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଲେ, ସେ 4 ଜନ୍ମ ଧରି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୋର ଈର୍ଷା ହୁଏ। ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ପରମ ଧ୍ୟାନୀ, ପରମ କର୍ମୀ, ପରମ ଉଦାସୀ, ପରମ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସେବକ ସ୍ୱର୍ଗତମ ସେହି ଯୋଗରାଜ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆର୍ଘ୍ୟ ଯେ ତ୍ୟାଗୀ ମହାରତୀ ସହନୀୟ ଆଜି କନିଷ୍ଠର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। भाई पानी में खाना खाइए।
정해서 हमारा श्रीमद् भगवद गीता है, उसका थोड़ा विश्लेषण ये किताब में किया गया है, संक्षिप्त विश्लेषण श्लोक 9 और 13 से
जो ध्यान पूर्वक देह त्याग उपदेश प्रदान करे। श्लोक 9 क्या है कि परम पुरुष सर्वज्ञ अनादि सर्वनियंता सूक्ष्माति सूक्ष्म समस्त सबका विधाता है। अचिंत्य रूप अर्थात मिलन और मन बुद्ध अगोचर और सूर्य पर स्वप्रकाश परप्रकाश प्रकृति का अतीत। जो व्यक्ति मृत्यु का समय में भक्ति युक्त होकर मन को एकाग्र करके योग बल द्वारा दो भूलता के मध्य प्राणवायु उत्तम रूप में संस्थापित करके निश्चल मन से परम पुरुष का स्मरण करेंगे, से दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में परम पुरुष का स्वरूप और शक्ति का वर्णना किया गया है। वेद बोले जो अक्षर और बोले बोले विषयता शून्य जत्मान जहाँ न हुई जहाँ को जाने पे अनेक साधक ब्रह्मचर्य अवलंबन करती से परम पद प्राप्ति उपाय श्लोक 12 प्रदान कर समस्त इंद्रिय द्वारा संयत करी अर्थात इंद्रिय मान द्वारा विषय ग्रहण न करी मन को हृदय निरुद्ध करी अर्थात बाह्य प्रति विश्व स्मरण करी भ्रुजुगल मध्य प्राण को धारण करी योगजत धैर्य को आश्रय करी ओम ए ब्रह्मात्मक एकाकार उच्चारण पूर्वक जे मत स्मरण करी तुरंत त्याग पूर्वक प्रस्ताव करती से परम गति प्राप्त होती। कौन सा परम गति कौन आदमी परम गति होंगे? बोले जितना सब इंद्रियों को संयत करके जितना विषय भोग है उसको ग्रहण करके जो बोले उस हिसाब से ग्रहण करके मन को जो निरुद्ध करके और बाहर में जितना विषय है उसको इतना अंदर नहीं डालना और अंदर जो है जो है ना उसको धारण जो करेगा ओम जो विजय मंत्र जो सिद्ध मंत्र है उसको जो धारण करेगा वो आदमी क्या करेगा ना परमागति प्राप्त होगा, उनका पास जाके पहुंच जाएगा। वो कितना 9 से 13 तक जो श्लोक है ना विश्लेषण किया गया है। यही अध्याय श्लोक 14-19 अनाचित भक्तर सहजरे ईश्वर प्रति से वर्णित होइছে। से भगवान बोलते जे अनन्य चित्त होई चिरदिन निरंतर मते स्मरण करे से नित्यचित्त योगी पक्षे मु सहजे लगे। अनन्य चेतः सतत जो मां स्मरति नित्यसः तस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। मोर सही भगवान मोर प्राप्त होई आ दुखर आलय स्वरूप अनित्य संसार पूर्व जन्म प्राप्त होती नहीं, ସେମାନେ मत प्राप्त रूप परमगति लाभ करते। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकरू जीव संसार को फेरी आसे किंतु मत प्राप्त हेले जीवर पुनर्जन्म हुए नहीं। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोक जीवन पुनर्वर्तनशील। शास्त्र सप्त लोक उल्लेख अछि तथा भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपोलोक एवं सत्यलोक और ब्रह्मलोक। देवता सहस्र देव जुगरे सहस्र चतुर्जुगरे ब्रह्मांकर एक दिन से सहस्र देव जुगरे ब्रह्मांकर एक रात्रि हुए। जो मैंने यही दिवारात्रि जानती से प्रकृत अहोरात्र देता से दिवारात्रि प्रकृत तत्व जानते। ब्रह्मांड दिवस प्रारंभ कारण रूप अव्यक्त प्रकृति ठारू सकल चराचर जगत उत्पन्न हुए और रात्रि प्रारंभ से अव्यक्त प्रकृति ठारे व्यक्त समस्त पदार्थ लय प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोटे दिन गोटे कल्प पूर्व कल्प जो जीव मैंने वर्तमान थे पुनः पुनः जन्म ग्रहण कर ब्रह्मांकर रात्रि समागम विघ्न होती और दिवासरंभ पुनराय स्वस्व कर्मर वशीभूत हो जन्म ग्रहण करते। पूर्व कल्प जो मैंने थे कल्पान्ते प्राणावस्था थी कल्पारंभ पुनराय जन्म ग्रहण करते। जीव यही पुनः पुनः जन्म ग्रहण करे और तार कर्मभोग शेष न तार पूर्व जन्म निर्वाहित हुए ना। यही अध्याय श्लोक 20-22 जीवन जन्मोक्त अतिक्रमण कर उपाय प्रकृतिर अतीत अक्षर पुरुष की भक्तर लभ्य ता वर्णित हुए। से चराचर कारण स्वरूप जो अव्यक्त प्रकृति ताठ नित्य अविनश्वर अव्यक्त पदार्थ अच्छा से होती परमात्मा बा परमेश्वर। सृष्ट सकल भूतंकर विनाश हेले से विनष्ट होते हैं। जह सर्वेषु भूतेषु विश्यातेषु न विनिश्यते। यही श्लोक में समस्त सृष्ट पदार्थर अनित्यता ईश्वर स्वरूप नित्यता प्रतिपादित। जे अव्यक्त अक्षर नाम कथित हुए और से परमात्मा श्रेष्ठ गति से गति प्राप्त हेले जीव को पुनर्बार संसार फेरियास हुए नहीं। से गति से अक्षर पुरुष व परमेश्वर परम धाम तो परमेश्वर ही परम गति
से गति प्राप्त होगा भिन्न जीवर जन्म अतिक्रम कर अन्य उपाय नहीं जहाँ ठारे भूत सकल बा प्राणी मैंने अवस्थित और जे निखिल विषय प्राप्त अच्छा से श्रेष्ठ पुरुष परम पुरुष एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्य अन्य किसी द्वारा नहीं। यही अध्याय 23 ରୁ 28 श्लोक देह नाश पर जीवर गति देवजान पितृजान मार्ग गतिर फल अर्थात क्यों मार्ग देह नाश पर जीवात्मा गमन कले जीवर पुनरावृत्ति पुनर्जन्म हुए नहीं और क्यों मार्ग गले जीवर पुनर्जन्म हुए नहीं ता वर्णित होई जीवर पुनरावृत्तिर अर्थ संसार पुनरागमन और अपरावृत्तिर अर्थ मुख्य लाभ जो मार्ग अग्नि ज्योति दिवस शुक्ल पक्ष उत्तरायण समास अभिमानिनी देवता अच्छा से मार्ग जाता लोक मैंने ब्रह्म प्राप्त हुए अग्नि ज्योति होतर वर्ग अर्चिर अभिमानी देवता और तेजर अधिष्ठात्री देवी जो मार्ग धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन समास अभिमानी देवता अच्छा कर्मचारी से मार्ग गमन कले स्वर्गलोक प्राप्त होती और सेठा कर्मफल भोग शेष पुनर्जन्म लाभ करती जगत में ज्ञानी और कर्माधिकारी जीवन शुक्ल और कृष्ण दुई मार्ग अनादि बहु चले प्रसिद्ध जीवात्मा स्वर्ग मार्ग गति द्वारा मुख्य लाभ हुए और कृष्ण मार्ग गति द्वारा पुनर्जन्म लाभ हुए यही शुक्ल मार्ग देवजान मार्ग अचिरादि मार्ग व उत्तरायण मार्ग कहुए कृष्ण मार्ग को पितृदान मार्ग धूमादि मार्ग और दक्षिणायन मार्ग कहुए जो मार्ग ज्ञान लाभ होती देहनाश पर शुक्ल मार्ग देवजान मार्ग में गमन करते और जो मार्ग ज्ञान लाभ होना देहनाश पर पितृजान अर्थात अंधकार धूमादि मार्ग में गमन करते जो मैंने गृहस्थ श्रम थाई इष्ट उपासन नानादि पुण्यकर्म अर्थात काम्यकर्म करती से पितृजान स्वर्गलोक पर्यटन जा पुण्यकर्म फलभोग शेष पुनर् संसार पुनर्जन्म प्रक्रिया प्रत्यायन करती से पुनरावृत्ति पथर यात्री हुए जो ज्ञानी गृहस्थ मैंने देवजान पथर ब्रह्मलोक पर्यटन जाती से संसार को पुनरावर्तन घटे कि ब्रह्मलोक अवस्थान काल जो जीवात्मा गुरु कृपार बहुत कृपार सम्यकार उत्पन्न हुए से परम ब्रह्म लीन हुए मोक्ष लाभ करते मोक्ष प्राप्ति संसार प्रापक जन्म पूर्व पूर्व पुनर्जन्म ये दुई मार्ग गतिर फल अवगत हो कर्मयोगी मैंने मोहग्रस्त हुए संसार प्रापक कार्यक्रम लिप्त हुए ना सर्वदा मुख्य प्रापक मार्ग अवलम्बन करते तो जीव सर्वदा योगयुक्त हो ज्ञान कर्म भक्ति मिश्रित योग अवलम्बन कर ईश्वर ठारे चित्त सन्निहित कर वेद यज्ञ तपस्या नाना जो पुण्यफल शास्त्र मान उपदिष्ट होती अध्याय श्री भगवान का उक्त तत्व अवगत हो योगी पुरुष से जो अतिक्रम कर ज्ञानानुभव कर परम पद प्राप्त होती यही अष्टम अध्याय सारगत है अर्जुन प्रश्न उत्तर से भगवान विविध तत्व उपदेश अवतारण कर अर्जुन प्रश्न गुट कौन था ना ब्रह्म कौन आध्यात्मिक कौन कर्म कौन अद्भुत क्या कहुए ऐतित अवैत दैवित कौन यह अति यज्ञ किए और से किपर अवस्थान कर मृत्यु काल भगवान को स्मरण कर सदगति लाभ कराए मृत्यु काल ईश्वर किपर जाणी हुए देहनाश पर पुनर्जन्म किपर निवारित हम अर्जुन यही सब प्रश्न उत्तर श्री भगवान जहाँ कहते तार सार्वभौम है वो निर्गुण अक्षर भाव ब्रह्मतत्व विश्व स्रष्टा रूपे मोर जो सगुण स्वभाव ता आध्यात्मिक तत्व से प्रथम कहले आध्यात्मटा कौन मोर निर्गुण अक्षर भाव ब्रह्मतत्व विश्व स्रष्टा रूपे मोर जो सगुण स्वभाव ता आध्यात्मिक तत्व विश्व सृष्टि कर्म तत्व मोर सृष्ट भूत प्रपंच अधिभूत माने ब्रह्मतत्व निर्गुण थे ना तो से सगुण जो गली से मोर है आध्यात्मिक तत्व सगुण सगुण हेले सीना उपासना कर से कौन कहले मोर आध्यात्मिक तत्व निर्गुण विश्व सृष्टि मोर कर्म तत्व तो विश्व सृष्टि करते कर्म तत्व मोर सृष्ट भूत प्रपंच अधिभूत पंचभूत भूत प्रपंच मोर अधिभूत और भूत समुदाय अधिष्ठान चैतन्य वर्तमान थे पुरुष में अधिदैवित ता भीतर जो चैतन्य अच्छा जो पुरुष अच्छा से अधिदैव इसमें जो क्वेश्चन के अर्जुन ने कृष्ण क्वेश्चन के आध्यात्मिक क्या है अधिदैव क्या है अधिभूत क्या है कर्म क्या है भगवान कौन है हम कौन सा गति में जाने से भगवान का पास हम जा सकते हैं कौन सा कर्म करने से उधर हम पहुंच सकते हैं तो उसमें अर्जुन ने उत्तर दिया है कृष्ण ने उत्तर दिए भगवान कृष्ण ने बोले सृष्टि रखेंगे
कर्म ताही यज्ञ एवं मुई अधिजन रूप यज्ञ दियता फल होता जीवर कर्म मध्य मोरी कर्म मत जानिले ईश्वर वो बोले जो पहले ब्रह्म निर्गुण थे उनका कुछ नहीं था देखते थे वो सब थे वो तो वो जब सगुण होने के बाद हम उनको उपासना कर सकते हैं वो भगवान जो क्या है भगवान मतलब ब्रह्मा क्या है वो सगुण जब हो गए वो भगवान में आगे भगवान की सृष्टि आगे तो हम उनका उपासना कर पाए बोले वो है मेरा वो जो तत्व है वो मेरा आध्यात्मिक तत्व है मैं जो विश्व को जो सृष्टि किया हूँ वो मेरा कर्म तत्व है उसका जो भूत प्रपंच है जो पंचभूत का जो शरीर है ना वो पंचभूत का शरीर हम वो बनाए वो जब भगवान आएगा कि शरीर बनाए वो पंचभूत का शरीर जो बनाए वो है मेरा दैव तत्व बोले उसका अंदर जो चिन्मय सत्ता है वो है अधिष्ठान चैतन्य का पुरुष आदि दैव तो आदि दैव है वो सृष्टि का रक्षा के लिए जो कर्म करते हैं वो मेरा यज्ञ है मतलब कृष्ण को आंसर दे वो सृष्टि रक्षा के लिए वो जो यज्ञ सब जो कर्म जो करते हैं ना यज्ञ कौन एक्चुअली यज्ञ कौन है सृष्टि रक्षा करने के लिए जो कर्म किया जाता है वो प्रकृति यज्ञ है वो यज्ञ में का अंतर मैं हूँ उसका जो फल जो निकलता है वो फल जो लेने के लिए वो मैं ही भोगता हूँ वो फल मेरा ही है वो मेरे भी मैं उसको ग्रहण ले लूंगा वो फल मैं क्रिएट करूंगा उसको मैं ही ले लूंगा जीवन कर्म होते से मोर से कर्म मत जाने सुना ये समग्र भाव मत जानिले जीवन मुक्ति लाभ हुए मुक्ति काल से जो भाव स्मरण कर देह हत्या करे से सही भाव तो बोले कैसे हम आपका गति हम जा सकते हैं आपका गति हम प्राप्त हो सकते हैं बोले मृत्यु का समय में आप जो स्मरण करेंगे आपका गति वही होगा तीन जान बोले एक पितृजान एक देवजान एक ब्रह्मजान तो आप जैसे आपका कर्म का हिसाब से आप वही जान में आपको जाना मृत्यु का टाइम मृत्यु होने के बाद वही जान में आप जाएंगे तो आपका कर्म लेके आप जो अंतिम टाइम में जो सोचेंगे आपका गति वही गति होगा वही जान आपका पास आ जाएगा आपको जाना पड़ेगा वो बोले दो जान जो है पितृजान में आप जाने के बाद आपको फिर लौटना आना पड़ेगा देव जान भी वो सत्य लोग है वो सत्य लोग तो जा सकते हैं लेकिन हमारा काम है ब्रह्म लोक में पहुंचने के लिए वो ब्रह्म जान है हम जा सकते हैं ब्रह्म जान है ब्रह्म लोक में पहुंच सकते हैं वो डायरेक्ट है नॉन स्टॉप उसको कोई स्टॉपेज नहीं है वो पूरा एक्सप्रेस लेकिन जो पितृलोक जो सत्य लोग है ना आपको एक जो लेकर 7 लोग भूत भुवर स्वयं अजन तप सत्य उसके ऊपर जो है ब्रह्मलोक तो एक लोक में एक आपका कर्म हिसाब से आपको जाना पड़ेगा वो कर्म आपका उधर खत्म है फिर आपको पुनर्जन्म आ जाता है फिर आपको जन्म लेके फिर ऊपर जाना पड़ेगा लेकिन ब्रह्म लोक जो है ना डायरेक्ट वो क्या बोले ये जो सब कर्म जो करेगा वो जो उत्तर दे वो जो सब जो कर्म करेगा वो डायरेक्ट ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा उसका बीच में कोई ऑब्स्टैकल नहीं है वो जो बोले हाँ आध्यात्म आदिदैव आदियज्ञ वो जो बोले वो सब जो यज्ञ क्या है वो प्रकृति जो यज्ञ जो प्रतिपालन करेगा वो जाके उधर पहुंच जाएगा वो बोले सृष्टि रक्षा के लिए जो कर्म किया जाता है वो प्रकृति यज्ञ है तो वो उसमें जो निबिड़ हो जाएगा लेकिन आपका कोई फल आकांक्षा नहीं रहेगा कोई इच्छा शक्ति नहीं रहेगा वो जो फल है उनका फल है उनको जो समर्पण करेगा वो जाके उधर पहुंच जाएगा जो माने जाग जगती पुण्य कर्म करते ସେମାନେ ଦେହ ନାଶ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେହି ଭୋଗ ପୁଣ୍ୟ ଠାରେ ଶେଷ ହେଲେ ସେଟା ପୁନଃ ସଂସାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାଧକ ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି जीवनयापन कले सद्गति लाभ हुए तेणु यही सब तत्व लाभ कर परपुरुष सहित जोगयुक्त रही पारे परागति लाभ हुए यही अध्याय यह श्री भगवान उपदेश यही अध्याय परमेश्वर स्वरूप प्रसंग में ब्रह्मतत्व ब्रह्मोपासना और मृत्युकाल ब्रह्मचिंतार प्रयोजनता प्रति वर्णित यार अध्याय नामकरण होती अक्षर श्री श्री गुरु गीता जय गुरु
श्री श्री गुरु गीता गुरु भक्ति तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम् अनेन यत् भवेत् कार्यं तद्वदामि महातप। श्री गुरुदेवଙ୍କ प्रति किपरि भावरे भक्ति करिबा एवं गुरु ध्यान किपरि करिबाक होए ताहा सब तुमे तुम निकटरे प्रकाश कले एही साधना रे प्रति हेले जो महान तपस्या रूप धर्म साधित हुए ताहा व्यक्त करुछि श्रवण करो। गुरु का प्रति की प्रकार गुरु का प्रति की प्रकार करिब शिष्य तीन जन भाव विनिमय करेंगे आम प्रशांत भाई काली पलैबे 9टा बेले दार्शनिक पारी अच्छी भाव विनिमय शुणी पारे जेहतु से काली 9टा अधारू पलाउं यज्ञ अधारू से पलाउं तेणु प्रशांत अनुरोध करुँच डेराडून मेम्बर अच्छा डेराडून बदली डेराडून अच्छा आसुँच पूजा अटेंड करने सेवा पाड़ी करने आसंता पाड़ी अच्छी से ठाकुर सुबोधन उत्सव जो से बाल्यपुर पलैबे तुम भाव विनिमय करने आम अनुरोध करुँ।
ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବି ଏରିଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଆମର ତଥା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଂଘର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭାଇ କହିଲେ ଅଭିମତ ଦେବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଳିରେ ଏ ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା କାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ଏଠି ହଉଛି ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଭାଇକି ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ 3ଟି ଉତ୍ସବ ରଖିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ 3ଟି ଉତ୍ସବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। गोटे जागर उत्सव जी कि 70 वर्ष 80 वर्ष धरिक आम गाँव गुरा नहीं आसमी आटेड करे पिला दिन से पड़ गई। द्वितीय उत्सव आम हैदराबाद संघर जो मोर पाड़ी से तो सहपाड़ी मु तो उत्सव गला भाया जो पाड़ी सेवा कर मोर अधिकार एतटा है ठाकुर देना मो सहसेवक से प्राय चेष्टा करी से सब वर्ष आटेड करने। तृतीय उत्सव है आम जो घर बुढ़ी रोचे से भी वर्ष थे उत्सव करने चेष्टा करे सबुठ बड़ एथर गोटे थिला चैलेंज की नुआ नुआ शिफ्ट होती देहरादून आते कम समय भितर शिखी भलक एस्टाब्लीश भी होती किसी कांटेक्ट नथिला भी भाई माँ मैंने कहीं भी नहांती सेठी भी उत्सव करने खाली गोटे शुद्ध संकल्प ठाकुर पाखे करी किंतु ठाकुर एते सुंदर भाव कले यही हैदराबाद भाई माँ मैंने बहुत सुंदर भाव से उत्सव करके आसिले। तेणुक ठाकुर जो आम आलोचना करुचे तो किसी जो टॉपिक को बाहर करूँ आम जो टॉपिक भी आलोचना करूँ तार से अनंत माने सबुदिन लगे कि नुआ नुआ लगुच आज भी बहुत गुड़े सब आलोचना किंतु मुझे तो मो माने सबुठू भाई माँ मैंने जिते सब आम संगे अच्छा समस्ते यंग माने मोटू सब जूनियर किंतु सेमानकर जो साधना मोटू काफी आगे मोर प्रथम पिला दिन ठाकुर फैमिली आश्रित ठाकुर फैमिली पिला किंतु ठाकुर जो मेन इंटरनल जो डेवलपमेंट से मुझे पचे कर्म बहुत ये अधिक समय जड़ित रहे बाहर बाहर बुलू थाए मझे पुणी ठाकुर नहीं 3 वर्ष थे हैदराबाद रे पुणी पठेदेले देहरादून सेठी भी तथापि कृपा जो ऋषिकेश आश्रम रे सेवार सुजोग मिली से पाठचित्र करने तेणुक मसकू थे आम पाठचक्र करुँ मो माँ जाऊ से तो बेसी भक्त भाई कहीं ना तेणुक ठाकुर जो कृपा मुझे गोटे एग्जांपल निर्भरता रही कि ठाकुर छाँग छाँ सब कर दिखते उत्सव कथा कहली एठिक आसवाई भी आम योजना होता कि 2 जन गत वर्ष माँ आसपार ना सेवा पाई मुझी आम जो जन्मोत्सव आसलु तेणु भी गोटे इच्छा था एथर ठाकुर सुजोग देले कि 2टा पाली लाग लाग पड़गला एथर रविवार आ सोमवार पिलांकर परीक्षा एथर जनकर 10th जनकर 12th से बहुत क्रिटिकल ये तथापि भी आने ठाकुर भी व्यवस्था करदे
मासक पूर्व सब आरेंजमेंट थिला पुणी हठात गोटे प्रोब्लेम हला कि मो जे माँ माने मदर जे तांकर हठात देह खराब हला से मु प्लान करथली एठी उत्सव सरला पर माँ को आनी बोली केना से तो एतवा ट्रैवल कर परिबेनी तांको छाड़ी के एका से होनी से देखलो केमिति असुविधा पड़ला तांकर माने एतटा पेन पड़ी गला तांको आनी करी मते रखे बोला सिटी देहरादून ने तांका ट्रीटमेंट भी चलची फिजियोथेरेपी भी चलची हठात ठाकुर मत ये कि नहीं किसी प्रोब्लेम नहीं ताकू आम जो ऋषिकेश आश्रम से आसिली मुझे कथा होली मुझे बोलते किसी असुविधा हो तो जने से सेवक भाई माँ अच्छा कि मो शुणी से एत खुशी कहले ये मोर गुरु गुरुआ बाबा सह मुझे मो भाग्य थिला मु आसिकरी आज माने जो तू जाई छुटी कि मोइले अछि किंतु मते बहुते सेवा रचना करूं से भाई मां मु माने मते लागुन जे मु बाहर छोई हां आ छाड़िए कहले मु सब थोड़ा जाए आश्रम पूजा सारी की राति जते ले घर ऊपर आसे मु केबे आश्रम रहउली हां किंतु ठाकुर से सुजोग देले गुरु गुरु आश्रम सेटा आश्रम रे रहउली बहुत खुशी से कहले काली भी मैं आम सब सेठी अरेंज कर सब ठाकुर कर जो जन्मोत्सव करने हाँ आठी आम गलु से सब अच्छा तले भी सब भड़ा अच्छा कई जन सन्यासी भी रोच से तेणु समस्त डका है प्रसाद वितरण हम क्या सब से आरेंजमेंट ये आश्रम तेणुक ठाकुर जो भी ठाकुर लीला बहुत भलरे कर जो भक्त मान पाखे रोच से बहुत एंजॉय कर जो आमर जो सांसारिक कथा बहुत किसी आलोचना करूँ आम मु खाली एति सेयार करी मोर जो ठाकुर पाखे आश्रम जो जो अटाचमेंट जो अट्राक्शन आहरी बढ़ी जाए से मन भितर जो पूजा है कि उत्सव है आम न रो से कर्तव्य थे भी ठाकुर संगे लिंक रहे से कार्यकारी करे आपर भी अनुभव कर बहुत बड़ बड़ इश्यूज जो मु जो कर्म क्षेत्र में अच्छी से प्राय डेली किसी ना किसी इश्यूज आसुता है किंतु मु ठाकुर गोटे जिते ऑफिस जाए ठाकुर को समर्पण कर दिए आप बसिक चलेबे ठाकुर भी पदरे समर्पण कर देखिए एत सुचारू भाव में सब कार्य हो जाए कारण जमी मु सबुठी अच्छे किंतु मु किसी करूँ आउ जन किए करूँ ना सी तो सेवा आम जमी अधिका ये सांसारिक सेवा हो कि आश्रम सेवा हो कि से परफेक्शन रहा दरकार ठाकुर संगे जो पिकता से अंतर रही सबकि ठाकुर कराइदेवे सेटा मु बहुत जगह भी निजे अनुभव करी आसला एते आनंद लगे काली माने लागू जे माने जेन लागू मु जाइनी एडी अछि हैदराबाद रे मु कंटिन्यू करछि एई टाइप रो फीलिंग आछि ठाकुर से सुजोग बारंबार देथांदु आज मां मन को पूजा रे जब मते सुजोग दे थरो नै बहुत मु कृतज्ञता अर्पण करछि ठाकुर महाराज को पदर भी तारीख जन्मोत्सव मो अभागा पूरा रही पानी प्रथम पूजा सारी जी किंतु ठाकुर उत्सव तो आहरी बहुत जाकजमक हो ठाकुर कृपा कर सब भाई माने ठाकुर मुनि आप जाकजमक आरंभ कर देबे हमें ताको खाली क्लोजिंग सेरेमनी आमे करिवो ठीक कहिरो आसो बेबी मा हमर डेराडून रू आसंती बेबी मा ना आसो ना हमरा से गोटे ट्रेन ता से चालू तापर से हैदराबाद पहुंचो डेराडून हमर ट्रेन आरंभ होईची से क्रॉस सरला बोले से हैदराबाद से सरीबो हमर काली बोला काली बोला जाइए
जो बही पढ़ा होला प्रथम पति धर्म पति सेवा ऊपर पढ़ा होला तापर आपण सेवा धर्म ऊपर कहले बाकी भाई को कहले प्रथमे रात्रि जल्दी सोइयो सकाळू देर रे उठो आपे ताकर कहबाटा भूल कि सुनियाटा भूल आबे बुझ जल्दी सोइयो देर रे उठियो जल क्या खाई से फुटबॉल खेले होजी सेटा पूरा फुटबॉल खाई से जल क्या खेले नहीं सदाचार जो पढ़ाला जाए धर्म सेवा संतान सेवा ये पढ़ाला ये कर जानछि आ पति को सेवा करबो पति के नेकी सब चलबो अब ताकठु आरंभ ताकठु शेष ठीक है का सगराई नहीं आज पढ़ाला जा बहिरे से पहुंची ठाकुर को विषय मो कहया मुना हैदराबाद आसिला परे मु जाई ठाकुर क्लोज हेची जते संघ को आसिला परे प्रथमे तो जानी थी सेमती घरे मु कहि छी भी पूजा जेमती करिया कथा करथि संघ को आसिला परे ठाकुर को संगरे जो संघ से शक्ति जो जोटा सेटा जानि पुनी 3 वर्ष रहिला परे 3-4 वर्ष पुनी माने दूरे की एबे जो कलु डिस्ट्रिक्ट रे मते प्रथम जब ठाकुर को विग्रह देखि मते बिल्कुल माने से विग्रह को देखिला परे मो मन रे अलगा धारणा आसिला जोगी गुरु विग्रह से मु जत्ते तर जाई प्रणाम कर ठाकुर मन रे गोटे माने अलगा धारणा आसे ई श्रीनिवास भाई जाइतिले मु ताक कहउथिली विशेष जिंस कहली भाई जो उत्सव पूर्व आसथिले मु थरे रात्रि एमती स्वप्न देखिली ठाकुर से जो जोगी गुरु विग्रह आ ठाकुर एमती माने हठात की ताको से जो गालर में एमती दाढ़ीटा काटी दउछ श्रीनिवास भाई कहली कोन ड्रामा सेटिंग करथिले ठाकुर मुगेले मु भी जानि मो मन रे संदेह आस्थिला मोर काई कि आसु नथिला से भावना तापरे परे धीरे धीरे एबे जाउछु प्रति मास रे जहा पूजा ये होउछि सब जो पाठ चक्र होउछि करछु किंतु ठाकुर से जिनस सब जिनस ठाकुर को समर्पण करी करूछि आ मते सेटा सब बेले ठाकुर लागुछि पाखे पाखे से ठाकुर सब बेले अछति मु आज पर्यंत जहा भी ठाकुर को जानि सेटा मोर माने ये हेछि फुलफिल हेछि मोर प्रथम इच्छा थिला कहले ना से समते आंको सफल पे छुआ को बड़ी स्कूल ले छाड़ो एगो कोन दून स्कूल ले छाड़ो टाटा बिरला छुआ हे जंती तमर आ एबे ठाकुर एमिति कले छुआ जाय कि दून स्कूल ले पढु जंती ना ना गोटे आपण जानि जस्ट बस का सर ठीक है ताकर रही जो ना रह गई सकाळ संध्या पूजा संघ साधना रे जो शक्ति आसे आपण जे केते शक्ति आपण घरे बाक्सिदी केते राणी आपण जाने सेना कहती कल्पना संगे काल थाई से पुनी मेंटेन होई जहा आपण कहि देबे दिन दिन फळि जीव जोटा आपण कहले नी टाटा पिला कहले देखो नै पकई दे नहीं सही दिन सब एबे सेडा माने रियलाइज करछि गुरु के पाखरे जे आपण प्रत्येक बा भाई खाली सीन हो आमे जानि ने किंतु कहि दे नहीं सेटा मु देखुची धीरे धीरे जो जिंस ओडा न कहले भी मन भीतर रहि जाउची ठाकुर सेटा धीरे धीरे फुलफिल करजन आ गोटे मु एबे कहउची मु गाड़ी ड्राइविंग सिखुथिली 3 थरा सिखिची छाडी देइची एबे जस्ट सिखिली किछि दिन पूर्वरु तापरे भी से माने से ड्राइवर जे सिखौची एते भलो मिलिची से आसी की कंटीन्यूअसली सिखौतला मोर हो नथला मते बहुत डर लागे कॉन्फिडेंस आस नथला ठाकुर कहले ठाकुर मते जन्म से पूर्व जे सेती करेबो करा न हम छाडी भी गाड़ी फेट छाडी देबी सरला आ तो हाजर गाड़ी चलेबी नहीं सत्य कथा भाई कहउची ठीक जन्म से 3-4 दिन अछि से लोकटी मते पूरा फोन कला कहला तमे निजे गाड़ी नै जाओ मु आसीबी जो असुविधा हो मु डर डर ठाकुर को कहि कहली तापर तीर्थर बे गाड़ी बाहर कर नेली ना कुछ असुविधा मु ठाकुर से जिंस ओडा जो कहि दोची रागी की ठाकुर को जित्ती रे ठाकुर कर दोचंदी मोर ओटा हम ताई कहबो एक गुटे में प्रार्थना करना कि आप पे तो प्रार्थना कर गोटा लेखाई नबाई हम देखते हैं गाड़ी चलो तोर मन पोथी पाठ से पढी हम प्रार्थना पढा नबाई कहबो किछि तोर मन पोथी पाठ से पढीची भक्ति रे खाली मथा पाइले तोमर ठाकुर रसिबे से जिंस मो तो किछि साधना मु तो जाननी बस सकाळ संध्या रे पूजा दरकार नै
सकाळे संध्यारे पूजा करूची आ ठाकुर को एतिकी मोर ठाकुर को पूरा विश्वास अछि ठाकुर सब जिंस पाखे पकाइछन्ती कि भूल हो ठीक हो जहाँ भी हेले ताको बाध्यरे जणाए सब बेले जो जिंस करबा आ हैदराबाद छाड़ीला परठू सेटा हैदराबाद आसीबी बोली कि मते 4 मास हेलानी एंती चालची गोटे हैदराबाद जीवी जेंती बापर को आसले सब झियो माने कर थाए आ सेटा मते से दिन भी जुली मा लिखि देले को भाई मानो पे सब राखी रेडी करके आनुछ ना नाही मु भाई मानो को गिफ्ट भी रेडी करके रखथि रे बापर जाउसी ना बापर आसी रेडी करके लेके आसो ଆମେ ନଡ଼ିଆ ସାରୁ ଘରୁ ଦବୁ हैदराबाद रु मोर भी सेटा रहितला मु आउ कोडी परिचय पत्र करबिनी आ ठाकुर भी मते चाहुना ऋषिकेश रे तो पाठचक्र चलछि आ से भी मोठी हबो भी नाही मते लागछि ठाकुर को ऊपर एमती सब बेले रहि थाउ हैदराबाद रे हमें रहो ଜୟ ସେ ପୁରଣ ବାବାଟି ଆସ ଭାବନା ସିନିୟର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆମର ଗାଁଟା ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଟେ ଗଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଯାଜପୁର ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଏ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଶାଖା ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନରୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ ଜୟ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମା ଭାଇମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପୂଜା ମହିଳା ସଂଘ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ସେପଟେ ଯେତେ ଜୋରି ମହିଳା ସଂଘ ହୁଏ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ ମା ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୋଲା କଥା ସବୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବସିକି ଆମେ ପୂଜା କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଂଘର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଥା ପ୍ରବାସୀ ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଉନ୍ନତି ଅଛି ନୂଆ ସଂଘ ତ ଯେତେ ପ୍ରବାସୀ ସଂଘ ଅଛି ସବୁ ମହିଳା ସଂଘ ଶାଖା ସଂଘ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଅଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଜି ଠାକୁର ଯାହା ସବୁ ବାଣୀ ଆମକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଦେଲେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ ସେ ଜୀବ ଭିତରେ ରହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ପରମାତ୍ମା ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସଂଯୋଗ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କରିକି ଗତି ପଥରେ ମଣିଷ ଉଠିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ପଶୁ ମଣିଷର ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତ ଆଜି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ବନ ଆକାରରେ ଚିତ୍ରମାଳାରେ ଅଛି ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ବନ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ବନ ବୋଇଲେ ବନିତା ତେଣୁ ମା ମାନେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଁ ମା ମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ବନିତା ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ବନିତା ତେଣୁ ମା ମାନେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ଆଉ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ଦୁରୁକ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କଥାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯୁଗ ଯେଉଁଟା
ଅତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଇ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇ ଯୁଗ ଇ ଯୁଗ ପୁରା କଳି ଯୁଗ ପରେ ଏଇ ଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ପଶିଲା ଇ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା କଳିଯୁଗର ଶେଷାନ୍ତରଟା ଏଇ ଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଲେ ଇରେ ପପ ଆମ ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୟନ ପରେ ତୁ ଶୋଇବୁ ଉଠିବୁ ଶୟନ କରିବୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସେଇଟା ଯୋଉଟାକି ବାପିଲେ ଆଜି ଆଜି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଜା କରିବା ପରେ ଯାଇକି ସଜାକୁ ଯିବ। ସେଠୁ ଏଇଟା ଏ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉ ଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ସଜା କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଉଠିବ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବିଲାକୁ ଦୂର କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଇଏ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମା ଉଠିବେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇବେ। ଗୋବର ମିଳୁଛି ଫିନାଇଲ ମିଳୁଛି। ଗୋବର କଲେ ସେଟା କଣ କେମିତିଆ? ଗାଈ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଲ ନା ଏବେ ଗାଈ କ'ଣ ପିଲା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଫିନାଇଲ ମିଳୁଛି ମାର୍ବଲ ଘର ଗୋବର ପକେଇ ହେବନି ଫିନାଇଲ ପକେଇଦେବା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଇ ଦେବ ପରା ଝାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଝାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ଛଟାରେ କହୁଛେ କି ମଜାରେ କହୁଛେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଗୋବର ସେଇ ଝାଡ଼ୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରି ଆଜି ତ ଘର ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ତ ସେମିତି ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି ତେଣୁ ଖାଇବା କଥା ଅବଶ୍ୟ ଗୋବରର ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଆଉ ଫିନାଇଲ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଆଟମ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋବର ଖାତରେ ବୁଡିକି ରହିବେ ଆପଣ ସେଟା ରିଆକ୍ସନ କରିବେ ମାନେ ଏତେ ଗୋବର ଖାତରେ ଆପଣ ବୁଡିଯିବେ ଏତେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଟମ ବମ୍ ର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିଟା ବି ଆପଣ କାମ କରିବେ ରେଡିଏସନ କିଛି କାମ କରିବେ। ଯାହା ହଉ କ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ଗୃହିଣୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୃହାସନରେ ରଖି ଯେଉଁ ମା ଭାବରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ପୂଜା ମା ଭାବରେ କରୁଥିବେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନେଇକି ମିଶିକି ପୂଜା ବି କରୁଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ସେଇମାନେ କେବଳ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିକି ଆସି ସଂଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀର ଆଦର୍ଶଟା ଯେତିକି ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବ ଗୋଟେ ଘର ଭଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏକଦମ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି ଏତିକି ଗୃହସ୍ଥ ପତ୍ର କରୁଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣୁଛି ଭଲ କି ପଢ଼ଉଛି ଝିଅକୁ ପଢ଼ଉଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଗାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଯୋଗାଉଛି ମାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଏଇଟା କରୁଥିବ ସେ ହେଇଗଲା ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ହେବ ସେ ମା ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କହିଲେ ମା ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ବା ମା ମାନେ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ବନ୍ଦ କରିବି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଦେଖା ଚାହା ହୁଅନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ହଉ କି ଯିବା ଆସିବାରେ କୋଉଠି ବାଟରେ ଘାଟରେ ହଉ ଦେଖା ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ଦିନ ହଠାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁ ବିରସ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କହନା ତୁ ସେ କଥା ଯାହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଘରେ କରୁଛି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଯେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ତ କେତେ ଦିନ ବାସା ହେଇଗଲା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଜାଣି ଅଟଣୁଆ ହେବ ତତେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କ'ଣ କହିବି ତୋତେ ଆଉ ଛଡ଼ା ଛାଡ଼ ହେଲା ତୁ ତ ହସତ ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷକକୁ କହୁଛି ଡାକ୍ତର ତୁ ତ ହସତ ବଦଳରେ ଅଛୁ ତୋର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି କହିଲା ମୋର ଏଇ ସମୟ ହେଲାଣି କିଛି କହିପାରିବ ତୁ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା ତାରିଖ ଭାର କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ କୋଉ ଧାରା ଶିକ୍ଷକ କରିବ ଜାଣିବା ସିଏ ବସିକି ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୈଠକ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି କବି ବନ୍ଧୁଟି ସେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ
ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଇଏ ତ ମନେଇଦେଲେ ଅନ୍ଧାର ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁ ଚା କପ୍ ଆଣିକି ଦେ 2 କପ୍ ଚା ଆଣିବା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଟି ପିଇଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁଟି ପିଇଦେଲେ ଢକିଏ ନେଇକି ପାଟି ଖୋଲିଦେଲେ ଗଲା ସରିଗଲା କିଛି ସମୟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ଡାକ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ଟିକେ ଲଣ୍ଠନଟା ଲଗେଇକି ଆଣିଲୁ ସେ ଲଣ୍ଠନଟା ଲଗେଇ ନେଇଗଲେ ସରିଗଲା ସେଠି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଙ୍ଖା ତ ବନେଇଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଗଲା ଦିନଟାରେ ତୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଇ ବନେଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ସେ କେମିତି ଆଣିକି ଦେଲେ ଅବଜେକ୍ସନ ନ କରିକି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ ଚା ଟି ପିଇଦେଲୁ ମୁଁ ପିଇ ପାରିଥିଲି ତା ଦେହରେ ତ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ତୁ କେମିତି ଲୁଣ ପିଇଦେଲୁ ମୁଁ ତ ପିଇ ପାରିଲି କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ମୁଁ ସରି ନେଇଗଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ମାଗିଲି ସେ ଅବଜେକ୍ସନ କାଢ଼ି ଲଣ୍ଠନ ଦେଇଦେଲା এইটু আমার রହୁଛି ବୁଝାମଣା ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲା ଆମର ବୁଝାମଣା ହବ ତମର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଭୟ ମିଶି ଯଦି ତାକୁ ଚଳିବ ତାହେଲେ ସୁନାର ସଂସାର ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାର ହେଇଯିବ ସେ କଥା କୋଉଠୁ ଶିଖିକି ଗଲି ସେ କଥା ଦିନରେ ଆପଣ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତେ କଥାଟା ଆଉ କିଛି କଥା ଲଣ୍ଠନ କଥାଟା ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସେଠିକି ଯାଉନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମାନେ ଆମର ମା ମାନେ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଦଉଛନ୍ତି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ଲଣ୍ଠନ ସେତେବେଳେ ତ ଲାଇନ ନଥିଲା ଏଇ ଆମେ ଯିବା କାଲକାଟା ଦେଖିବା ଯୋଉ ବେଲୁର ମଠ ସେ ଫୁଙ୍କିକି ଲଣ୍ଠନ ନିଭେଇଦେଲେ ନିଭିଗଲା ଶାରଦା ଦେବୀ ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯୋଉଠି ବାଁ ପଟକୁ ତାଙ୍କର ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ନାଲି ପାଟିର ଶାରଦା ଦେବୀ ବସିଥାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସେ ହସି ହସି ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ଥୋଇଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଣି ଅଭିମତ ମାନେ ଦଉଥାନ୍ତେ ଭାଷଣ ଉପଦେଶ ପୁଣି ଫୁଙ୍କି ଯାଉ ଟେକିକି ଏମିତି ଫୁଙ୍କିକି ନିଭେଇଦେଲେ ଏମିତି 5-10 ଥର କଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଗୋଟା 5-10 ଥର ଗୋଟା ଫୁଙ୍କିକି ହଁ ଗୋଟା ପବନ ନିଭି ଯାଆନ୍ତା ଗୋଟା 5-10 ଥର ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଫୁଙ୍କିକି ନିଭେଇ ଦେଲାଣି ମାଆକୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ହସି ହସିକି କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ହସି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ବାପା ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାହା ହେବି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହବୁ ଏମିତିଆ ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ଲଣ୍ଠନ ନିଭିଲେ ଲଗେଇ ଆଣି ଥୋଇବାଟା ହଉଛି ତାର ସେବା କାହିଁକି ନିଭେଇ ଦେଲ ଫୁଙ୍କିକିରି ପଚାରିବା ତାର ଅଧିକାର ତାର ସେବା ଲଣ୍ଠନ ନିଭିଲେ ଲଗେଇ ଆଣି ଥୋଇବୁ ଫାଇରିଂ ଯଦି ତମେ ଫାଇରିଂ ନ କରିବ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ତ ସୈନିକ କେହିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମାରିବି ପଛରୁ କମାଣ୍ଡର ତମକୁ ଫାଇରିଂ କରିଦେବ ସେ କାହିଁକି କମାଣ୍ଡିଂ ଦଉଛି କି ଆଗରେ ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ ଫାଇରିଂ କରିବା ଆମର ଏଠି କମ୍ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଫାଇରିଂ କରିବା ସୈନିକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ ସେପଟେ ଆମର ବେଶୀ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କମାଣ୍ଡିଂ ଦେଇଛି ଫାଇରିଂ କରେ ଗୋଟା ସୈନିକ ସମସ୍ତେ ଫାଇରିଂ କଲେ ଠକ୍ 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 ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମାରିବି କେହି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କମାଣ୍ଡର ପଛରୁ ତାକୁ ଫାଇରିଂ କରିଦେଲା ଏଇଟା ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଆମର 2 ଥର ଲଗେଇ ଆଣିବେ ନୁହଁ 3 ଥର ଲଗେଇଲା ମୁହଁ ଦିହରେ ବେଶୀ କ'ଣ ଦେଖିଲା ତମେ ଉଠି ଲଗେଇଲା ଫୁଙ୍କି ନିଦେବ ମତେ କେବଳ ଲଗେଇ ଆଣିବ ଏକଦା ଉତ୍ତର ଆସିବ ନା ନାହିଁ ମତେ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ହଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ବି କହୁଛି ତାମାନେ ଖାଲି ମା ମାନେ କରିବେ ନୁହଁ ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀଟା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଭାଇମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ତାମାନେ ଠାକୁର ମାଙ୍କ କଥାଟା ମାନିଲେନି ଆମେ ବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ତୁ କ'ଣ ଯାହା କହିବୁ ଯାହା କରିବୁ ନା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅମାନା କଲେ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅମାନା କଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ କାରଣ ସେଟା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା କହୁଛି ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆମେ ଭାଇମାନେ ବି କରିବା ଦରକାର ସେ ସୁବାସ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ବାସ୍ ନହେଲେ 2ଟା ଝାଞ୍ଜ ହେଲେ ଖାଲି ଝଞ୍ଝେଇ ବାଜିବ ଆଉ ଆବାଜ ଆସିବ ପାଖରେ ତମେ ରାବଣ ସିଏ ସୀତା ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ
সেটা ঠিক নয়। ସୁଭାଷ ଯୋଉଟା ଏକଦମ ଏ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବନାଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହେଇଯାନ୍ତା আমরা কি সেই হিন্দি ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜାଣିନ? କଣ? କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା ନା आइए आप थोड़ा दो शब्द आपका वक्तव्य रखिए। आपका अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, 2 शब्द आप आके हमारा इधर पहुंचे। कैसा लगा? आपका थोड़ा अरे मोरा हो चला परिचय दिए दे दो तो এটা খোলনি খালি সিধা কথা ଆପଣ ଆଗରେ କଣ ରିଲେଟିଭ କଣ? वो हमारा जो राजेश भाई जो हमारे आते हैं रेगुलर, राजेश भाई थोड़ा उनका परिचय दे देंगे तो सबको। हाँ मैं खुद देता हूँ ना परिचय। ठीक है। मैं खुद